Hello bachcho, welcome to the lecture number 6 of atomic structure. In this lecture we are going to discuss the atomic spectrum. One of the biggest achievements of Bohr's model was the atomic spectrum of hydrogen and hydrogen-like species. Before going into details, let us first understand what spectrum actually means. चलिए spectrum देखते हैं क्या होता है. Spectrum is simply the band of colors. It is band of colors, or in other words we can say it is the pattern of colors, or in other words the arrangement of colors. The arrangement of colors is called as the spectrum. By this color we mean actually the wavelength, and color is used for the visible radiations only. You may have observed that rainbow in the skies. In your rainbow there are these colors varying from violet to red. That means Weber, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red colors are there in the rainbow. These colors are arranged in some particular order, in a particular pattern. That's why that rainbow is one of the examples of a spectrum. How this spectrum is actually formed? Say suppose we have this prism. Diffraction grating can be also used. If white light is incident on this prism, the white light here is dispersed by this prism. It is dispersed by the prism, or this white light, in other words, is splitted into different wavelengths or colors. A particular pattern is obtained here. If it is white light, say this Weber is obtained here. And these colors are arranged in particular order. Here we have the red, here we have the violet. And this prism actually deviates these wavelengths or colors according to their magnitude. The wavelengths which are having higher values, the colors which are having higher wavelengths, larger wavelengths, they will be deviated the less. And shorter wavelengths will be deviated the most. Violet is having short wavelength, less wavelength than that of the red. Therefore, this red will be deviated the least and violet the most. So we'll note the point that deviation is inversely related to wavelength. चलिए पहला पॉइंट आप नोट करेंगे. So this pattern obtained here when this light is incident on prism is called as the spectrum, and this pattern contains the arrangement of the different colors or wavelengths. अगर यहां से हमने कोई और लाइट यूज की है, जनरल लाइट को यूज की है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी कलर्स ओनली. देयर विल बी वेवलेंथ्स. यहां से आपका अल्ट्रावायलेट आएगा, यहां से आपका इंफ्रारेड आएगा, या यहां से और भी आ सकते हैं एक्सरेज वगैरह, वहां से भी आ सकते हैं माइक्रोवेव्स. सो देयर कैन बी डिफरेंट wavelengths and their particular arrangement is called as the spectrum. We'll study this ultraviolet, infrared in the atomic this spectrum ahead. This spectrum, it is generally of two types. One is emission spectrum, another is absorption spectrum. First is our emission spectrum. What is emission spectrum? Emission spectrum is simply whenever a source of electromagnetic radiations or source of light, say bulb or sun, emits radiations, and those radiations are incident on this prism, and these radiations as usual they will be dispersed by this prism. The spectrum so obtained is called as the emission spectrum, because these radiations they are emitted from some source. That is, what is this emission spectrum? Simply the spectrum of emitted radiations from any source, say bulb or sun. This emission spectrum, it is of two types. One is continuous, another is line spectrum. This line spectrum is also called as atomic spectrum. What is this continuous emission spectrum?
when a light from or electromagnetic radiations from any source, they are incident on a prism or diffraction grating. Diffraction grating can also be used. So when they are incident on this, diffraction takes place. The pattern of the wavelengths or colors obtained, if that color or those colors or those wavelengths are not distinct from each other, they are not separated from each other. In other words, their boundaries are mingled or their boundaries are merged into each other. We say that type of spectrum is the continuous emission spectrum. So the continuous emission spectrum is again the arrangement of wavelengths or colors, but the colors in this arrangement are merged into each other. The rainbow is one of the examples of this. Rainbow is an example of this. In your rainbow, you will find violet is merged into indigo, and indigo is merged into blue at the boundaries. So there are no short boundaries between different colors or wavelengths. Such a spectrum will be called as the continuous emission spectrum. Second very important type is line spectrum. Again, this is the emission spectrum. So what this line spectrum is, for example, we have some gas or any element. This gas or any element, it is heated at high temperature. If it is heated at very high temperature, in fact, or an electric discharge is passed through it. Electric discharge is passed or it is heated at high temperature. What is observed that this sample of gas or any element, it emits radiations. If these radiations, they are passed through a prism, what happens? Again the same process, dispersion takes place and these wavelengths are obtained. The patterns obtained is called line spectrum. Why? Because this spectrum is just like this. This is hypothetical. हाइपोथेटिकली मैंने यहाँ कुछ लाइंस बनाई, 4 लाइंस बीच में, यहां से ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन 6 लाइंस मैंने टोटल बनाई. तो ये जो स्पेक्ट्रम है, दिस स्पेक्ट्रम इज इन द फॉर्म ऑफ शार्प डिस्टिंक्ट डिस्क्रीट लाइंस. इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिस्क्रीट लाइंस होती है और द मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन इट इज ब्लैंक. जो यहाँ पे ये व्हाइट पोर्शन है, दिस व्हाइट पोर्शन इज ब्लैंक. इसमें कोई भी रेडिएशन, कोई भी वेवलेंथ या कोई भी कलर नहीं है. So such a spectrum in which these lines are present only is called as the line spectrum. These lines actually represent a particular wavelength. Why there are the lines only present? Bohr satisfactorily explained these lines in the line spectrum. Actually, this line spectrum is the property of this atom. Once this is heated, it emits some particular radiations. Some particular radiation is only. That is why there are some distinct lines in the line spectrum. If we are changing the gas, say suppose initially we have placed the hydrogen gas. If now we will place the helium gas, a different line spectrum will be obtained. Say this was the line spectrum we obtained. Hypothetically, we are assuming this. तो इस तरह का line spectrum बन गया for helium and this was for the hydrogen. What was observed that these line spectrums for different atoms, it was always different, and we can say the line spectrum of any atom or any gas is unique for it, or we can say that this line spectrum is the fingerprint of atoms. आप इस तरह से समझेंगे, जो ये लाइन स्पेक्ट्रम है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट एटम्स के लिए. हाइड्रोजन के लिए अलग, हीलियम के लिए अलग, बाकी जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे उनके लिए अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम होगा. तो हम कहेंगे दिस इज सिंपली द फिंगरप्रिंट, क्योंकि हमारे पास जो ह्यूमंस का फिंगरप्रिंट होता है, किसी भी ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ मैच नहीं होता है. लाइकवाइज हियर,
किसी भी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम दूसरे एटम के साथ कभी भी मैच नहीं होगा. दैट इज व्हाई दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड एज द फिंगरप्रिंट. दिस इज द फिंगरप्रिंट. ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करेंगे और इस स्पेक्ट्रम को हम अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो हमें बोहर ने समझाया है. चलिए नेक्स्ट इज this it is also called atomic spectrum because it was coming from the atoms. Next is absorption spectrum. Emission spectrum के बाद दूसरा जो spectrum का type है that is absorption spectrum. Absorption spectrum क्या होता है? Say suppose we have a gas sample here, again a gas sample, but this time we are not heating it, we are not passing electric discharge through it. What we are doing, this is the white light, we are passing any light through this gas sample. Say suppose we have passed white light. White light हमने इस gas sample में से pass किया. The emergent light from here, जो यहां से emergent light आई, that is passed through a prism. What was observed? Again dispersion takes place. फिर से वही dispersion हो गया. This is the dispersion. And pattern obtained here is called as the absorption spectrum. Pattern किस तरह का था? ये जो मैं बना रहा हूं, actually these are different light bands or color bands, we can say. Different color bands यहां है. अब मेरे पास एक ही कलर है, मैं एक ही कलर से ही दिखा रहा हूं, अदरवाइज दे आर डिफरेंट. ये ऐसे डिफरेंट कलर्स है. What was observed in this absorption spectrum, that there are few of the colors missing or few of the wavelengths missing. Absorption spectrum में देखा गया, जो ये absorption spectrum है, हमने एक सैंपल में से पास किया व्हाइट लाइट, वही प्रिज्म में से पास की, जो स्पेक्ट्रम आया उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं. जो स्पेक्ट्रम था इसमें कुछ वेवलेंथ्स हमें मिसिंग थी, राइट. रेस्ट जो है बाकी सारी वेवलेंथ्स प्रेजेंट है. ये यहां पे जो डार्क रीजन है इसमें वेवलेंथ्स प्रेजेंट है, लेकिन कुछ मिसिंग वेवलेंथ्स यहां थी. व्हाई एक्चुअली दिस हैपेंड? This is the property of this gas taken on any element taken in this sample. ये जो यहां गैस है, actually this gas absorbed some radiations. कैसे ये पता चला? अगर ये व्हाइट लाइट हम डायरेक्टली इसमें पास करते तो ये मिसिंग नहीं थे. ठीक, जब हमने बीच में ये रखा तो ये कुछ वेवलेंथ्स आपकी मिस हो गई. दैट मीन्स this sample has a property, it absorbs some of the radiation. That is why this is called as the absorption spectrum. And it was observed that whenever we change a gas in this absorption spectrum, इसमें जब हम गैस चेंज करते हैं, कभी हमने ऑक्सीजन रखा, नाइट्रोजन रखा, हीलियम रखा, हाइड्रोजन रखा, for the different gases different absorption spectrum was obtained, as was the case with the line spectrum. So this also is the fingerprint. This also is the fingerprint. So absorption spectrum is also the fingerprint of an atom. एक चीज आप और भी नोट करेंगे, अगर हमने यहां हाइड्रोजन लिया और इसी हाइड्रोजन का हमने एमिशन स्पेक्ट्रम भी बनाया, अगर हमने इसी का एमिशन स्पेक्ट्रम भी लिया, दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. जो इसका एमिशन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का, से सपोज this was the emission spectrum. In the emission spectrum of hydrogen, what was observed, that these 5 lines were present. Hypothetically मैं कह रहा हूं, suppose these 5 lines were present only. और इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी क्या था, 5 lines were missing. जो लाइंस वहां असल में प्रेजेंट थी लाइन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन की, वही यहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्सेंट थी. दैट मीन्स उतनी ही लाइंस यहां मिस है जितनी लाइंस इस लाइन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट है. इट वाज ट्रू फॉर ऑल द गैसेस. हर एक गैसेस के लिए ये सही था, हर एक एलिमेंट के लिए सही था. सो दिस वाज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. नाउ विल टेक अवर टॉपिक दैट इज atomic spectrum. How actually
Bohr explained this atomic spectrum, or we can say line spectrum. So explanation. बोहर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, ध्यान से आप सुनेंगे. से सपोज दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज द ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, दिस इज ऑर्बिट नंबर सेकंड, this is your orbit number third, this is your orbit number fourth, this is your orbit number fifth, say this is your orbit number sixth. In your orbit number first, say energy is E1, that is minus 13.6 electron volts. In E2, energy is minus 3.4 electron volts. ये हमने कैलकुलेट किया है लेक्चर नंबर 5 में. For E3, energy is minus 1.51 electron volts. For E4, energy is minus 0.85 electron volts. For this N5, energy E5 is minus 0.54. For this, it will be 0.37 E6. So these are the different orbits. Bohr ने क्या कहा? Generally, this electron, it resides in its lowest energy level, that is the ground state. तो इलेक्ट्रॉन जनरली n equal to 1 में ही होता है. Generally it remains in the n equal to 1 because in this n equal to 1 this electron possesses the minimum energy, इसलिए ये इसी में रहेगा. But when we are supplying energy, अगर हमने हीट किया या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सप्लाई किया जैसे हमने किया था गैसियस सैंपल के लिए, this electron will be excited. Say suppose this is excited to this n equal to 6 orbit. जब ये एक्साइट होगा, इट विल एब्सॉर्ब सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी. कितना ये एब्सॉर्ब करेगा? पिछले क्लास में भी हमने देखा, इट विल एब्सॉर्ब द डिफरेंस ऑफ दीज टू, जहां ये गया और जहां से गया. n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 1 का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, वही ये एब्सॉर्ब करने वाला है. सो वी कैन से दिस एनर्जी चेंज जो यहां हो रहा है, दैट इज E6 माइनस E1. इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी. लेकिन in this orbit, in n equal to 6 orbit, this electron is very unstable. ये वहां unstable है because in that level it is possessing a high amount of energy. हमें पता है this is the minimum amount, minus 13.6 electron volts. तो यहां minus 0.37 है, तो energy is more, क्योंकि नेगेटिव में तो छोटा ही वैल्यू बड़ा होता है, तो 0.37 is the greater value. तो यहां इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए उस ज्यादा एनर्जी में एज पर द केमिस्ट्री रूल्स हमें पता है whenever system possesses the high energy, it always tries to reduce its energy in order to gain the stability. Likewise here, this electron will always try to lose its energy in order to jump into the lower energy level. तो ये कर सकता है एनर्जी लॉस, तो आ सकता है डायरेक्टली इसमें, लेकिन जरूरी नहीं है कि इट में लूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल कम टू n equal to 5. वहां ये थोड़ा सा उससे स्टेबल है. ये ऐसे भी आ सकता है, ये उसके बाद यहां आ सकता है, उसके बाद यहां आ सकता है, उसके बाद जिस तरह से एनर्जी इमिट होगी, अगर यहां से यहां डायरेक्ट, तो ये एनर्जी इमिट होगी वापस, क्योंकि एब्जॉर्ब होगी थी उतनी, तो यही इमिट होगी वापस. अगर यहां से यहां आया तो E6 टू माइनस E5 उतनी एनर्जी होगी. इसी हिसाब से जैसे जैसे ये यहां आएगा तो एनर्जी डिफरेंट एनर्जीज इमिट होगी. तो बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन will remain in its ground state until and unless we supply some amount of energy. If it absorbs some amount of energy, it is shifted or it jumps to the higher energy level. In the higher energy level, this electron is unstable. It will always try to lose that energy and jump into the inner energy levels or lower energy levels. तो ये जो jump कर रहा है from outer to inner, एनर्जी जो इमिट हो रहा है, बोहर ने प्रपोज क्या किया? The energy is emitted in the form of a photon, or we can say the electromagnetic radiation. तो हम कहेंगे जो एनर्जी यहां से यहां ये जब जंप कर रहा है, इमिट हो रहा है, दैट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रेडिएशन. जो हमने स्पेक्ट्रम में देखा कि रेडिएशन आ रही थी, स्पेक्ट्रम आ रहा था. ठीक, बोहर ने कहा एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वी कैन से फोटोन, तभी वो स्पेक्ट्रम आ रहा था वहां. हाँ, हमें पता है यहां से यहां आया एक स्पेसिफिक रेडिएशन होगी E6 माइनस E1 की, जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी का फोटोन भी आएगा. अब अगर यहां से यहां आ रहा है तो उतनी एनर्जी का फोटोन आएगा, यहां से यहां आ रहा है उतनी एनर्जी का फोटोन आएगा, जो इनका डिफरेंस होगा. तो इसलिए वो डिस्क्रीट वैल्यूज थी लाइन स्पेक्ट्रम में. सो विल राइट फ्यू पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट,
electron remains in its ground state. Ground state unless and until energy is supplied. हमें पता है that energy will be supplied in the form of heat or the electric discharge. If energy is supplied, electron jumps to higher energy level where it is unstable, therefore will always try to lose that energy and jump into lower energy levels. Right? अब बोर ने क्या कहा है, ये अब lower energy levels में जब आ रहा है, आपने कॉपी किया होगा, if it jumps to the lower energy levels, the energy is emitted in the form of a photon. तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी इमिट हो रही है. इसका मतलब हो गया जो एनर्जी आ रही है दैट इज ई फोटोन. फोटोन की एनर्जी इमिट हो रही है. जब भी यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, हमें पता है पहले एनर्जी कितनी इमिट हो रही है, वो हो रही है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स. तो बोहर ने कहा दैट इज एक्चुअली इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. तो ई फोटोन विल बी इक्वल टू किसके बराबर, जहां से आया और जहां ये फाइनली सेटल हुआ. दैट मींस अगर यहां से आया E6 माइनस E1, तो जनरल फॉर्मूला हम यहां बनाएंगे En2 माइनस En1. En2 will be E6 for this case and N1 will be N equal to 1 in case it jumps from 6 to first orbit. Right? हमें पता है ये जो एनर्जी है ये हमें पता है किसके बराबर होता है. दिस एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हमने डिराइव किया है लेक्चर नंबर 5 में. दिस इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ये हमने डिराइव किया हुआ है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, ई फोटोन विल बी इक्वल टू En2. उसके लिए हम लिखेंगे 13.6 दिस इज Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर माइनस 13.6 दिस इज Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर. दिस इज इट. तो ई फोटोन विल बी इक्वल टू, इसका ये माइनस माइनस प्लस होगा तो हम इसे रीअरेंज करेंगे. दिस विल बी Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर. दिस इज इट. यहां से कॉमन क्या क्या आएगा, दिस ई फोटोन दिस विल बी इक्वल टू 13.6 कॉमन, Z स्क्वायर भी कॉमन इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. तो ये आपका फॉर्मूला आएगा यहां. राइट? एज वी नो this E photon, this is actually equal to what? This E photon is equal to hc by lambda. hc by lambda. And this hc by lambda is equal to then, this is equal to 13.6 Z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This energy of photon, हमें पता है ये एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी. इट विल बी द डिफरेंस इन द टू एनर्जी लेवल्स जो हमने यहां लिखा. राइट? और हमें ये भी पता है जो डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल्स, ये इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी होती है 13.6, 0.37. इनका सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे इनका एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा. सपोज 13 पॉइंट समथिंग 2 इस तरह का वैल्यू आएगा. हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन 6 से फर्स्ट में आएगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, always this amount of energy will be emitted. Always this amount of energy. Same amount हमेशा जब भी 6 से फर्स्ट में, 5th से फर्स्ट में, 5th से फर्स्ट में आएगा E5 minus E1. Same amount हमेशा. यही कहा था बोहर ने that this amount of energy associated with particular orbit is fixed. It is actually quantized. तो हम कहेंगे जो ये एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी, ये यहां क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है. जब भी ये जंप करेगा 6 to 1, same energy will be emitted. तो हम कहेंगे दिस H
it is constant, this C is constant, this H is Planck's constant 6.626 into 10 raised to power minus 34, and this C is also constant, is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. जो आपका ये लैम्डा है ये यहाँ पे वेरिएबल है, इसका मतलब हो गया जब एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, दैट मींस दिस लैम्डा आल्सो विल बी फिक्स्ड. जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम 6 to 1st, एनर्जी इमिटेड विल बी क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड. Therefore the wavelength of that photon or electromagnetic radiation which is emitted will always be fixed or quantized हम कहेंगे. चलिए इस इक्वेशन में आगे चलते हम. We'll divide both sides by hc. यहां से hc से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, यहां से ये रहेगा. This is 1 by lambda is equal 13.6 z square divided by hc into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. राइट, चलिए कॉपी करिए आप. So this 1 by lambda will be equal to 13.6 divided by this h. h का मैंने अभी आपका वैल्यू बता दिया 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड. ये प्लैंक्स कांस्टेंट है 3 into 10 raised to power 8 meters per second. ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट 13.6 भी. और तो ये सारा कांस्टेंट बनता है दैट इज r into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is it. जो ये r है यहां, this is called as the Rydberg's constant. इसे हम Rydberg's constant कहते हैं. Rydberg's constant. ये जो आपका फॉर्मूला बना, this is called as the Rydberg's formula. इसे हम Rydberg's formula कहते हैं और इस कांस्टेंट को हम Rydberg's constant कहते हैं. इस फॉर्मूला का नाम बाल्मर्स फॉर्मूला भी था क्योंकि पहले 1885 में ये फॉर्मूला हमें बाल्मर ने दिया था और लेटर इन 1890 रेडबर्ग ने इसे मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला बनाया. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द रेडबर्ग्स फॉर्मूला. जो ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट है इसका वैल्यू जो है वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट आई विल जस्ट राइट हियर 1.09 into 10 raised to power 7 मीटर इनवर्स. ये ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है. We will later on see कि हमें क्या रटना चाहिए और हमें क्या मदद करना चाहिए. चलिए, this is the Rydberg's equation. On the basis of this Rydberg's equation and various experiments with respect to the spectrum of hydrogen and hydrogen-like species, various spectral lines were observed by different scientists. साइंटिस्ट्स ने जब इस पे काम करना शुरू किया, उन्होंने बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस देखी हाइड्रोजन में, उनको अरेंज किया गया. उन स्पेक्ट्रल लाइंस को डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ग्रुप्स को अरेंज किया. हम एक डायग्राम बनाएंगे यहां. से दिस इज n इक्वल टू 1, दिस इज हियर n इक्वल टू 2, दिस इज हियर n इक्वल टू 3, दिस इज हियर n इक्वल टू 4, n equal to 5, n equal to 6, n equal to 7, n equal to 8, and so on. This is n equal to infinity. These are the energy levels. This is E1 minus 13.6 electron volts. This is E2 minus 3.4 electron volts. This is E3 equal to minus 1.51 electron volts. This is E4 minus 0.85 electron volts. इसका क्या आता है? This is E5 minus 0.54 this electron volts. This is E6. This is minus 0.37. यहाँ minus 0.27. बाकियों का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस फॉर्मूला से, right? So this is infinity. Here this E infinity will be equal to 0 because at infinity the energy of this electron or is taken as 0. Why it is taken, E infinity is taken as 0? Because this electron is now unbound. It is no more bound to the nucleus. That is why it is taken as 0. After this, these energy levels, they will be in the form of a continuum. Infinity के बाद they will be in the form of a continuum. This electron will have a translational motion after it is unbound from the nucleus. चलिए हम देखते हैं. पहली स्पेक्ट्रल सीरीज जो थी हमारी, पहली स्पेक्ट्रल सीरीज एक साइंटिस्ट ने दी, उनका नाम था लाइमन. इसलिए इस सीरीज का नाम पड़ा लाइमन सीरीज और ये सीरीज यूवी रीजन में आता है. लाइमन सीरीज क्या है? इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो गया
कहीं भी हो गया एक साइड, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, कहीं भी हो गया, और किसी भी ऑर्बिट से जब वो वापस आ रहा है तो पहले ऑर्बिट में आ रहा है, पहले ऑर्बिट में आ रहा है, जो सीरीज स्पेक्ट्रल लाइंस की बनेगी, क्योंकि अगर आप 8 से फर्स्ट में आएगा तो एक लाइन हो गई, 7 से फर्स्ट में आएगा तो दूसरी लाइन, 6 से फर्स्ट में आएगा तीसरी लाइन, इसी तरह से 5, 4, 3, 2, तो बहुत सारी लाइंस बन सकती है। उन लाइंस का एक साथ हम नाम रखेंगे, दैट इज लाइमन सीरीज, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया है तो वो लाइमन थे। सो स्पेक्ट्रल लाइन फर्स्ट n इक्वल 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, इसी तरह से यहां से 1, यहां से 1, दिस इज फ्रॉम हियर टू 1, दिस इज फ्रॉम हियर टू 1। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज द लाइमन सीरीज, लाइमन ने इसे डिस्कवर किया, और ये आपका n इक्वल 2 से आ रहा है, और ये फाइनली दिस 8 से, और दिस विल बी द लास्ट वन, दिस इज फ्रॉम इन्फिनिटी। चलिए जरा इसकी थोड़ा सा और हम डिटेल्स देख लेते हैं। चलिए यहां हम एक चीज जरा क्लियरली समझ लेते हैं पहले। जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1, दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन पॉसिबल, ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन पॉसिबल है। यहां जो यहां लास्ट में है, दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टू द फर्स्ट, दैट इज द लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन पॉसिबल। हम कैलकुलेट करेंगे जो यहां पे रेडिएशन हमारी इमिट होगी, जो वेवलेंथ यहां पे इमिट होगी शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन से, पहले हम उसे कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स कौन सी रेडिएशन, n इक्वल टू 2 से जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है n इक्वल टू 1 में, उसकी वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय रेडबर्ग्स फार्मूला, दिस इज 1 by लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू z स्क्वायर इंटू 1 by n1 यहां क्या है, दिस इज द लोअर वन, दैट इज 1 स्क्वायर, माइनस n2 क्या है, दैट इज 2 स्क्वायर, दिस विल बी द फार्मूला, 1 by लैम्डा विल बी इक्वल टू r, z हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि ये सारा हम स्टडी करें हाइड्रोजन के लिए, तो z होगा हाइड्रोजन के लिए 1, दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर, तो ये एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, तो ये एटॉमिक नंबर 1 होगा, 1 स्क्वायर इज 1, तो यहां क्या आएगा आपका 1 माइनस 1 by 4, तो ये 1 by लैम्डा क्या होगा, दिस विल बी r इंटू 4 माइनस 1, दैट इज 3 by 4, तो दिस लैम्डा विल बी 4 by 3 इंटू 1 by r, इसका हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यहां से मैंने रेसिप्रोकल किया है, मैंने आपसे पहले ही कहा इसका वैल्यू आपको मगअप नहीं करना है, दिस लैम्डा इज इक्वल 4 by 3 इंटू दिस 1 by r, 1 by r को आप मगअप करेंगे, दिस इज 9/11, और 9/11 आपको पता ही है, दिस इज वन ऑफ द फेमस डेट्स 9/11, तो 9/11 आप याद रखेंगे यहां, दिस 9/11 जो ये लैम्डा आपका आएगा, दिस विल बी इन एंगस्ट्रम्स, तो 4 by 3 इंटू 9/11, जरा इसे आप सॉल्व कर दीजिए, दिस इज 3 एंड दिस इज 0, दिस इज 4, this lambda will be 12, this is 1216 angstroms, so the first wavelength here is 1216 angstroms, ये जो shortest transition का wavelength आता है, this is 1216, उसके बाद this is your final, चलिए आप दूसरे के लिए भी निकाल लेते हैं, इसमें दूसरे के लिए हम निकालेंगे, आपको आप भी साथ साथ करिएगा, दूसरे के लिए निकाल लेते हैं, n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 से आ रहा है कहां, n इक्वल टू 1 पे, जरा इसके लिए भी निकाल लेते हैं, दिस इज 1 by लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर, r, फिर से z स्क्वायर तो खत्म हो गया हाइड्रोजन के लिए, 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर, दिस विल बी इट, तो 1 by लैम्डा विल बी r इंटू 1 माइनस 1 by 9, दिस 1 by लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, r इंटू 9 माइनस 1, 9 1 9 माइनस 1, दैट इज 8 by 9, चलिए दिस इज 1 by लैम्डा, दिस इज, चलिए लैम्डा हम कर देते हैं यहां, दिस इज लैम्डा द वेवलेंथ, तो ये होगा 9 by 8, रेसिप्रोकल इसका भी रेसिप्रोकल 1 by r, दिस लैम्डा विल बी इक्वल 9 by 8 into 9/11, 1 by r मैंने आपसे कहा, दिस इज 9/11 एंड द रिजल्ट विल बी इन एंगस्ट्रम्स, ये आप याद रखेंगे, एंगस्ट्रम्स में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक, सो दिस लैम्डा विल बी इक्वल, लैम्डा किसके बराबर, इसको हम जरा सॉल्व कर देते हैं, 8 1s are 1s are 3 4, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने कर दिया, 9 4 तो 36, 9 1s are 9, this is 12, 9 1s are this is 10, this is lambda is equal to 1026 एंगस्ट्रम्स, तो जो आपका दूसरा वैल्यू है 1026 एंगस्ट्रम्स, दूसरा हमने निकाला, पहली वेवलेंथ आपकी 1216 एंगस्ट्रम्स की थी, दूसरी है 1026, दैट मींस डिक्रीजिंग ट्रेंड, जब आप यहां से यहां जा रहे हैं आपकी जो वेवलेंथ है दैट इज डिक्रीजिंग,
यहां से यहां जब आप जा रहे हैं, दिस वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, दैट मींस इट इज फर्स्ट 1216, देन इट इज 1026। आगे जब आप जाएंगे यहां इस स्पेक्ट्रल सीरीज में, नेक्स्ट में यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, फाइनली आप इन्फिनिटी पे जब जाएंगे तो सबसे छोटी वेवलेंथ होगी यहां, ये सबसे बड़ी वेवलेंथ। इसका मतलब सीधा सीधा होगा जो आपका शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है उसमें सबसे बड़ी वेवलेंथ। चलिए हम डिराइव करते हैं इन्फिनिटी का, आपका क्लियर होगा पूरा सही पूरा। ये इन्फिनिटी के लिए हम डिराइव कर देते हैं। चलिए, इफ इट इज n इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इक्वल टू 1, तो क्या होगा, दिस 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू r इंटू z, हमें पता ही है 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू r इंटू 1 माइनस दिस इज 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है तो दिस ऑल विल बी 0, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 बाई r। तो 1 बाई r क्या है, 911 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये आपका वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स हियर वी हैव, ये जो लास्ट आपका वैल्यू आ रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज 911। आप देखिए यहां से 1216 1026, उसके बाद ये और छोटा आप डिराइव करेंगे सबके लिए तो ये सारे छोटे हो जाएंगे, फाइनली इट विल बी 911 एंगस्ट्रॉम्स, दैट मींस इट इज डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो आप एक पॉइंट नोट करेंगे, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, आप लिख के रखेंगे ये, शॉर्टेस्ट जो आपका ट्रांजिशन है उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। चलिए ये आप नोट करेंगे। नेक्स्ट सीरीज क्या है, ये एक सीरीज हो गई हमारी लाइमन सीरीज दैट फॉल्स इन द यूवी रीजन, जो ये वेवलेंथ है दे आर ऑल इन द यूवी रीजन। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट ने दी, दैट इज बॉल्मर। असल में बॉल्मर सीरीज ही पहले आ गई थी, हमने इसे अरेंज किया है एक ऑर्डर में, तो असल में बॉल्मर ही पहले आई थी। तो बॉल्मर सीरीज है, बॉल्मर सीरीज क्या है, बॉल्मर सीरीज में इफ वी हैव दिस न्यूक्लियस, दिस इज डिफरेंट ऑर्बिट्स, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, कहीं से आ रहा है सेकंड पे आ रहा है, यहां सेकंड पे आ रहा है, दिस इज n इक्वल टू 2, कहीं से भी आ रहा है सेकंड पे, तो जो सीरीज बनेगी दैट इज कॉल्ड एज द बॉल्मर सीरीज। यहां से हम दिस फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू 2, यहां से 2 पे आ रहा है, यहां से सेकंड पे आ रहा है, यहां से फिर से सेकंड पे आ रहा है, यहां से फिर से सेकंड, यहां से फिर से सेकंड, एंड फाइनली फ्रॉम दिस टू सेकंड। तो इस सीरीज का नाम पड़ा बॉल्मर सीरीज, बॉल्मर सीरीज। और बॉल्मर सीरीज इट फॉल्स इन विजिबल रीजन, ये आप याद रखेंगे, इसमें यही सिर्फ विजिबल रीजन में है और ये यूवी रीजन में है, तो दिस इज इन विजिबल रीजन, दीज रेज वी कैन एक्चुअली सी। तो यहां आप देख लीजिए, यहां जो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है दैट इज n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2। चलो एक के लिए हम डिराइव कर देते हैं। चलिए देखिए, say this is n equal to 3 to n equal to 2, मिनिमम तो यहां n equal to 2 होगा, फाइनली सारी रेज n equal to 2 पे ही, यानी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n equal to 2 पे फाइनली, तो हमारा 1 बाई लैम्डा क्या आएगा, दिस विल बी r into 1 बाई n1 स्क्वायर, n1 क्या है अभी, दैट इज 2, दिस इज इंपॉर्टेंट, माइनस 1 बाई n2 क्या है, दैट इज 3, दैट इज 3 स्क्वायर, दिस इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r into 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। This 1 by lambda will be equal to r into 9 minus 4, that is 5 by 9 for the 36. This is it. So your lambda will be equal to what? It will be 1 by r into 36 by 5. So this is 36 by 5. तो आप वैल्यू निकाल लीजिए, lambda will be, this is 911 into 36 divided by 5, आप निकाल लीजिए इसका वैल्यू, एंगस्ट्रम्स में आपका वैल्यू आने वाला है। तो इसके लिए आपका वैल्यू आएगा, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहां दूसरे के लिए भी आप सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली तीसरे के लिए, चौथे के लिए, और फाइनली आप इन्फिनिटी टू सेकंड आप सॉल्व करेंगे। आप क्या देखेंगे, इन्फिनिटी टू सेकंड जो ट्रांजिशन है उसमें आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ रहा है, जो पहली शॉर्टर ट्रांजिशन थी उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ रहा है, जो यहां से आप निकालेंगे। तो आप लॉन्गेस्ट के लिए भी यहां ट्राई करेंगे, और ऑर्डर वही फिर से होगा जो मैंने कहा, यहां से जब आप यहां सीरीज में जाएंगे तो क्या होगा, दिस वेवलेंथ डिक्रीजेस। थर्ड जो हमारा सीरीज है, थर्ड सीरीज है, थर्ड सीरीज क्या है, वो यहां एंड हो रही है n इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है तीसरी पे, और एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ सीरीज बन रहा है, दैट इज दिस। This is, and this series is called as the Paschen series. This series falls in infrared region. It is in infrared region. तो इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन jumps from anywhere outside
to the third orbit. This is called the pass turn. इसी तरह से हमारी एक और सीरीज है, whenever electron jumps from anywhere to the fourth, that series is called as the bracket series. This is called as the bracket series, and this bracket series is again in infrared region. यहां से जो भी आएंगे वो infrared region में ही होंगे सारे, यहां से पास टर्न से सारे infrared में ही. हाँ, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होंगी लेकिन सारी फॉल करते हैं विद इन द इंफ्रारेड रीजन. चलिए, दिस इज योर ब्रैकेट सीरीज. नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनीवेयर कम्स टू दिस n इक्वल टू 5, एक और सीरीज बन रही है. दिस सीरीज इज कॉल्ड एज द फंड सीरीज. इसे हम फंड सीरीज कहते हैं. एंड फंड सीरीज मैंने आपसे कहा यहां से सारी जो सीरीज है दे आर इन IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन. तो ये भी इसी में है. उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज आपकी है कहीं से भी आ रहा है, सिक्स्थ में आ रहा है. दिस इज दिस और यहां से आ रहा है सिक्स्थ में. तो इस सीरीज को हम कहते हैं हम्फ्रे सीरीज. हम्फ्रे सीरीज, HUMP, हम्फ्रे सीरीज. तो हम्फ्रे सीरीज अगेन इट इज इन IR रीजन. हम्फ्रे सीरीज भी IR रीजन में होता है. तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया कि क्या क्या स्पेक्ट्रल लाइंस असल में बोहर ने एक्सप्लेन किए थे, इन डिफरेंट साइंटिस्ट ने एज अ ग्रुप एक्सप्लेन किए थे फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. जनरली हम कहेंगे हाइड्रोजन के लिए. तो ये बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं. आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारी स्पेक्ट्रल, इसमें देखिए कितनी लाइंस, इसमें भी बहुत सारी, इसमें भी बहुत सारी लाइंस है इसमें. ठीक, तो ये सारी लाइंस क्यों, जबकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है हाइड्रोजन के पास. वो आप जरा देख लीजिए क्यों इतनी लाइंस है हमारे पास, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज ओनली वन. इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है. दिस इज द न्यूक्लियस. ये यहां शेल्स डिफरेंट है. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता था ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली, ये एक्साइट हो गया यहां से यहां, ये यहां आ गया, ये वापस यहां आ रहा है, एक रेडिएशन हो गई, ये वापस यहां आ रहा है, एक दूसरी रेडिएशन, ये आ रहा है, यहां आ रहा है, बहुत सारे रेडिएशन, ये डायरेक्टली यहां आ रहा है, एक रेडिएशन हो, ये यहां आ रहा है बाईपास करके इसको, तो यहां आ रहा है, तो एक रेडिएशन हो, यहां से यहां आ रहा है, तो रेडिएशन हो. तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन असल में बहुत सारी है, इसीलिए इतनी सारी रेडिएशन हमारे पास आ रही, इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है. राइट. चलिए, कभी कभी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या आता है, calculate the number of spectral lines when this electron it transits from n equal to 5 to n equal to 3, n equal to 4 to n equal to 1, n equal to 3 to n equal to 1, कुछ भी आ सकता है. जरा हम वो कैलकुलेट करते हैं. हम इसके लिए एक शॉर्टकट भी बनाएंगे जो जनरली आपकी बुक्स पे दिया होता है, वो शॉर्टकट वो भी हम लिखेंगे. से सपोज आपके पास दिस इज n equal to 3, दिस इज n equal to 1, दिस इज n equal to 2. इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है. आपको क्या बताना है, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास कितनी होंगी ये आपको बताना है. तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती हैं, यहां से यहां जब ट्रांजिट होगा डायरेक्टली अगर यहां आ रहा है तो एक लाइन तो हो गई. अब अगर ये यहां आ गया, पहले ब्रेक्स में यहां आ गया, दूसरी लाइन हो गई. अब यहां से यहां आ गया, तीसरे, आप कहेंगे ये सेम नहीं है, यहां 13.6 इसकी एनर्जी, यहां 3.4 या 1.51, तो एनर्जी डिफरेंट, तो यहां की रेडिएशन वो डिफरेंट होगी, यहां की रेडिएशन डिफरेंट होगी. तो टोटल हमारे पास आ गई 1, 2 एंड 3, 3 रेडिएशन आ गई. अब अगर आपके पास है एक क्वेश्चन n इक्वल टू 4 से आ रहा है n इक्वल टू 1, यहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये यहां से यहां आ सकता है डायरेक्ट, ये यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, ये यहां से यहां डायरेक्ट, और उसके बाद यहां, ये यहां से यहां आ सकता है, उसके बाद यहां डायरेक्ट. चलिए, ये हो गया एक आपका, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गए 5. ये तो हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने यहां कैलकुलेट किया, सेम है, तो ये हम नहीं करेंगे. तो ये यहां और यहां दीज आर द सेम, ये भी हम नहीं करेंगे. दिस इज 6, तो हमारे पास टोटल आ गई 6. लेकिन अब अगर आ गया फ्रॉम n इक्वल टू 8 टू n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, इसके लिए आप ये डायग्राम, इसमें भी हमें टाइम कंज्यूम हुआ काफी, तो इसके लिए ये बनाना सारा ये मुश्किल है, तो इसलिए हम एक जनरल इसके लिए एक शॉर्टकट बनाएंगे. तो शॉर्टकट क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, आप अच्छे से नोट करेंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. चलिए जरा हम दूसरे के लिए करते हैं. दूसरे के लिए क्या था, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1, ये था हमारे पास. जरा हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं. n इक्वल टू 2 क्या है, 4 माइनस n1 क्या है, दैट इज 1. यहां से 4 माइनस 1 प्लस 1, दिस एंड दिस विल कैंसिल, डिवाइडेड बाई 2. This is 4 minus 1, that is 3, into this 4
डिवाइडेड बाई 2, तो 4 3 12, दिस विल बी 12 बाई 2 दैट इज 6। वही तो यहां भी हमें मिला है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे n2 माइनस n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2. This n2 is the higher energy level जो आपके पास दी होगी, n1 is the lower energy level जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप होके आता है। तो ये है अबाउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें बोहर्स मॉडल से अच्छे से समझ आ गया। जरा हम लास्ट में एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम करेंगे, when electron transits from n equal to 3 to n equal to 1, what will be the energy emitted and the wavelength of that radiation? चलिए फाइनली हम लास्ट में ये क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट एनर्जी एंड वेवलेंथ of radiation when electron jumps from n equal to 3 to n equal to 1 in hydrogen atom। चलिए क्वेश्चन हम करेंगे। पहले हम जरा देखते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मैंने आपसे कहा यू हैव टू मार्क अप दीज वैल्यूज। दिस इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नेगेटिव है सारी वैल्यूज। तो ये कहां से कहां, थर्ड से आ रहा है फर्स्ट में। पहले हमें जनरल फॉर्मूला पता है, दिस डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E3 माइनस E1। ठीक, दिस E3 क्या है, -1.51 माइनस ये इसका माइनस और माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड से आ रहा है, दिस इज n इक्वल टू 3, दिस इज n इक्वल टू 1। थर्ड से आ रहा है पहले में, तो थर्ड की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी, तो क्या आएगा टोटल हमारा 13.6 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये मैंने, दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस 13.6 माइनस 1.51, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, दिस इज 12 पॉइंट समथिंग 0.9 मान लीजिए आप। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपका वैल्यू आता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमारा एनर्जी आ गया। तो एनर्जी हमने निकाल लिया, जो इस रेडिएशन की एनर्जी होगी दैट विल बी दिस। अगर ये जूल्स में हमें कन्वर्ट करनी हो तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस हम मल्टीपल करेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹, ये जूल्स में आ जाएगा। दिस विल बी इन जूल्स। तो एनर्जी आपका कैलकुलेट हो गया। चलिए आप कॉपी कीजिए। नेक्स्ट टाइम में कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला सिंपल है। हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ये हमारे पास फॉर्मूला पहले ही है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी, जितनी डिफरेंस हमने अभी अभी निकाली, तो वो होगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। दिस इज h is 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड into this velocity, this is 3 into 10⁻8 meters by second divided by this lambda। lambda क्या है, lambda ही हमें निकालना है। चलिए ये हम यहां कर देते हैं, आप अच्छे से इसे स्टेप वाइज करेंगे। दिस इज lambda, lambda आपका ये आएगा। तो ये अगर जूल्स में आप कन्वर्ट की, क्योंकि यहां हमारा जूल्स है, तो यहां आप जूल्स में 1.602 into 10⁻⁻19, ये भी जूल्स में आएगा। जूल जूल कैंसिल होगा, सेकंड यहां कैंसिल होगा। तो ये जो lambda आपका आएगा दिस विल बी इन मीटर्स। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन है। इन यूर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन इतना टाइम आपके पास नहीं होता, इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे पास कोई शॉर्टकट होना चाहिए। तो शॉर्टकट हम निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, हम फाइनल शॉर्टकट जो आपको याद रखना है, एग्जाम्स में अप्लाई करना है, तो वही हम करेंगे। तो हमने लैम्डा निकाला, इन मीटर्स आपका लैम्डा आ रहा है, तो हम शॉर्टकट से इस लैम्डा को निकाल लेते हैं। और जनरली आपका जो लैम्डा आता है वो होता है एंगस्ट्रम्स में। ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंगस्ट्रम्स में, लेकिन हम शॉर्टकट से पहले करेंगे इसे। 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल डायरेक्ट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल किसके बराबर, दिस आर जो हमने अभी अभी किया, इनटू जेड स्क्वायर। ये हाइड्रोजन है तो जेड स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसका लिखना कोई जरूरी नहीं है। 1 बाय n1, चलिए हम पूरा लिखते हैं, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो हम 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू r इनटू जेड स्क्वायर। 1 बाय n1 क्या है, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। n2 स्क्वायर क्या है, 3 स्क्वायर। चलिए दिस इज 1 बाय लैम्डा, दिस विल बी इक्वल टू r, z इज 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाय दिस 1 बाय 9 हो गई। 1 बाय लैम्डा आपका क्या आएगा, दिस विल बी r इनटू 9 माइनस 1 दैट इज 8 बाय 9। चलिए 8 बाय 9, आगे क्या होगा, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। लैम्डा आएगा आपका किसके बराबर, लैम्डा आपका जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 1 बाय r इनटू
9/8. चलिए, दिस लैम्डा विल बी इक्वल टू दिस 1/r इज 911, जो मैंने आपसे कहा है, दिस वैल्यू यू हैव टू मग अप, ठीक, इंटू 9/8 सॉल्व कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन एंगस्ट्रम्स। आप देख लीजिए, बहुत जल्दी हो गया और आंसर आपका एंगस्ट्रम्स में डायरेक्टली आ गया। तो दिस इज योर आंसर। हाँ, आप मीटर्स वाले में भी कर सकते थे, वहां कैलकुलेशंस आपकी बहुत सारी थी, यहां सिंपल कैलकुलेशंस हैं। जब आपकी प्रैक्टिस होगी आप तो विद इन हाफ अ मिनट भी इसे 20-30 सेकंड्स में आपका यह होगा। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो हमें बोहर ने एक्चुअली समझाया। इन द नेक्स्ट दिस लेक्चर इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग, अगर हम लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल भी इसमें कर देंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल कर देंगे। चलिए, फिलहाल के लिए गुड बाय।